नमस्कार, मैं राहुल अखिलेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल आगरा के इस शो में। इसका नाम है शख्सियत, जहां हम देते हैं उन हस्तियों को सम्मान जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, अपनी एक अलग पहचान कमाई है। तो दोस्तों, आज इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल आगरा की हमेशा ये पहल रहती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनका कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी कड़ी में समय समय पर बच्चे यहाँ आए हुए अलग अलग हस्तियों के इंटरव्यूज लेते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। तो दोस्तों, आज इस साक्षात्कार और इंटरव्यू को करने के लिए आ रही हैं हमारे विद्यालय की ही कक्षा 12 की छात्रा, जिनका नाम है साबोरी चावला। तो मैं राहुल अखिलेश गुप्ता आपसे विदा लेता हूं और अब आपकी मुलाकात होगी साबोरी चावला से। थैंक यू। Hello dear viewers, I, Saburi Chawla, welcome you to this segment of Shakhsiyat, where we introduce you to some great personalities. This time, the students of GD Goenka have requested our respected principal sir to appear on this show, and today I have the honor of welcoming sir on this show. कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। सर, हमने आपको हमेशा स्कूल में देखा है। We are very curious about your personal life. So would you please share something about your personal life with us? Thank you, Saburi, first of all. And personal life, I think it is very important for everyone. But today, I suggest personal life will keep it separate. हाँ, मैं जरूर बताऊँगा आपको बाद में. But I think you should ask something related to the school today and something related to basically my professional life. That will be better. I'll come on a personal life in the end. Of course, sir. We'd love to know your vision about the school. Okay, sir. Every year before the start of a new session, the school has set goals for the students. So this time, I would like to know your sessions for the 2024. See, Saburi, every year when we start the session, in the beginning of the session, we sit with the teachers, we sit with the students, and we plan a vision of a year. And this year, our vision is basically the certain areas which we want to target. Like we talk about the visions and goals of the last and the last year. Partially and up to some extent, we have already achieved it. But every year we have to have a new vision. So this year, our vision is basically just to have a throughout the school, पूरे school में, average of our children, like average of what means academic average should be increased. So this is the vision for this session, and we all are working, all teachers are working. And for the my dear parents sitting back home and listening me, I would like to explain you in your way. Average is what basically when the child is taking admission in class 3 for example, and when they go out from the school class 12th में जब वो पास होके जाते हैं, तो इन बच्चों का जो average growth है, I want to assure each one of you, everyone is in a plus. Suppose कोई बच्चा क्लास 4th में 40% पर आता है, 80% पर आता है, when they are taking exit from school, they are in a plus. So this is the vision of this year. Though it's a cumulative vision which has other visions also. So priority which I communicated, which I shared my vision with my teachers, and we all are working on this vision कि हर एक बच्चा जो जिस क्लास में भी हो, जब वो यहाँ से 12th करके जाए तो उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ हो वो प्लस में हो. I hope we, the students, live up to your expectations for this year.
सर एक रिक्वेस्ट है, सिंस आवर ऑडियंस इज़ मिक्स्ड, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपना इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखें। तो सर मेरा आपसे दूसरा सवाल कि जीडी गोइंका एक प्रोग्रेसिव स्कूल है, तो एजुकेशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स को हम स्कूल में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड। बेसिकली टुडे सेंचुरी, जो आज की सेंचुरी है, उसमें जो हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्लास 5th में हमारे पास आता है, 6th में आता है, 7th में आता है, तो आफ्टर सर्टेन ईयर दिस चाइल्ड विल बी इन द इंडस्ट्री 10 साल बाद। तो क्या वो हमारी एजुकेशन उस लेवल की है कि वो 10 साल बाद उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मैच कर पाएगा? सपोज वी कीप ऑन टीचिंग अगेन द ट्रेडिशनल्स, अगेन द बेसिक मेथड्स, बेसिक स्टाइल ऑफ टीचिंग इन अ क्लासेस, नेचुरली जब ये बच्चा मार्केट में आएगा और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैच नहीं कर पाएगा। तो जीडी गोइंका अब क्या क्या लेटेस्ट हो सकते हैं? लाइक दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, द गैप रूम वेयर यू आर सिटिंग ओवर हियर एज ए एंकर और आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हो। तो व्हेन यू विल बी इन द मार्केट, तो ये आपके लिए टैबू नहीं होगा किसी को इंटरव्यू करना, जर्नलिज्म में जाना, पब्लिक को फेस करना, कैमरे को फेस करना। दिस विल नॉट बी ए बेसिकली education for you, it will be a culture for you. So this kind of culture is given to every child. This is the one of the trend. Second, what are the other trends? See, I say openly to all my listeners, आज की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा स्किल दुनिया में कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज। अगर वो कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन हिंदी हो, इंग्लिश हो या एनी लैंग्वेज यू टॉक अबाउट, अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप किसी भी इंडस्ट्री में आप रहोगे, you will achieve, you will fulfill all your dreams of your parents. Communication को हम कैसे सिखा सकते हैं? This is the one of the platform. Though we have a morning assemblies, though we have a different platform in the school, we have a dance, a debate, other competitions in school, जिसके थ्रू बच्चों को स्टेज मिलता है। But present scenario को अगर हम देखें, going on a morning assembly once in a year, twice in a year, thrice in a year, which is practically difficult for any school. कोई भी स्कूल मॉर्निंग असेंबली स्टेज पर अपने क्लास के बच्चों को एक साल में 2 या 3 बार या मैक्सिमम 5 बार से ज़्यादा नहीं ले जा सकता। बट दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव अपॉर्चुनिटी, वेयर वी हैव ए स्कोप कि बच्चों को फ्रिक्वेंट चांसेस मिलते रहते हैं। तो इंडस्ट्री की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयार करना, दिस इज ए लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ डेवलपिंग चिल्ड्रन फॉर द नीड ऑफ इंडस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जीडी गोइंका लेता है। स्पोर्ट्स, अदर देन द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, अभी जो आने वाले समय लाइक बैडमिंटन इज ए ग्रोइंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो बैडमिंटन में हम लोग क्या कर सकते हैं? दो क्रिकेट इज ए बेसिकली बैकबोन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट में यू नो गोइंका हैज़ गिवन ऑलरेडी अ लॉट टू द आगरा इन द एट कंट्री लेवल, हम लोगों ने नेशनल प्लेयर्स दिए हैं। बट बैडमिंटन नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई दिस फीलिंग टू ऑल माई लिसनर दोज आर लिसनिंग मी। बैडमिंटन में भी हमारे यहाँ वी आर गिविंग दैट लेवल कि नेशनल प्लेयर हमारे स्कूल से निकल रहे हैं। एंड आई वांट टू एश्योर एवरीवन, यू विल बी सीइंग वेरी गुड प्लेयर्स स्पेशली फ्रॉम द जीडी गोइंका आगरा इन टाइम्स टू कम। अदर्स गेम्स लाइक rifle shooting is there, swimming is there. These are basically the latest game where we have to, there's a lot of scope there because there's no competition in India. So if we go and we grab all these opportunities, then naturally the children will do wonder over there. So these are the basically latest trends, latest education system. Plus classes के अंदर में like smart classes के अंदर में other way of delivering lecture, it's become bit obsolete now. स्मार्ट क्लास जस्ट अ टूल, बट देयर मेनी मोर वेज। क्या हम अपनी क्लासरूम टीचिंग में आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं? बिकॉज आर्ट इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम अपनी क्लास में प्ले वे मेथड्स, क्या अपनी क्लास में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं? सो दैट इज द बेसिकली लेटेस्ट ट्रेंड्स विच इज हैपनिंग इन द जीडी गोइंका, एंड आई होप एज ए स्टूडेंट यू विल एग्री ऑन ऑल दीज विच आई एम सेइंग। Of course, sir. The students and the parents alike greatly appreciate the opportunities presented to us. सर मेरा अगला सवाल, हमारी स्कूल की फैकल्टी, आप और हमारे बच्चे रिजल्ट्स पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ बच्चे टॉप कर पाते हैं और कुछ थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो आप सक्सेस को क्या कंसिडर करते हैं? सफलता का जवाब देना है, बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका जवाब देने के लिए आई नीड
some help for my listeners also. I may be wrong the way I'm explaining you, but whatever I know I will try to basically explain. सफलता एक डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता एक जर्नी है. There are children in a class, those score 98%, some score 94%, some may score 45%. Even कुछ बच्चे ऐसे भी हैं those struggle basically to have even the passing marks. बट ये एक क्राइटेरिया नहीं है कि उनके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करें कि यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट सक्सेसफुल. आज की डेट में इन द जर्नी ऑफ जैसे 5% ऑफ माई लाइफ, अगर आज की डेट में हम देखें तो यू में से कि वो बच्चा सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल नहीं है, बट अभी बहुत कुछ बचा हुआ है. वी हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस लाइक इन क्लास 10th दो चिल्ड्रन वर डूइंग वेरी गुड, क्लास 11th में आते ही वो कोलैप्स कर जाते हैं. एंड दोज वर एवरेज इन क्लास 10th, वो बहुत अच्छा करते हैं. अगेन दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली डन. अभी वो क्लास 12th में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ अच्छा ना करे, और जो अच्छा नहीं करते वो अच्छा करना शुरू कर देते हैं. ग्रेजुएशन में इवन जाने के बाद देयर लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इवन इन ग्रेजुएशन. वो जो जर्नी है, जो फाइनल मैराथन में लास्ट में फर्स्ट पहुँचेगा, उसको आप कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर बॉय और गर्ल अचीव द सक्सेस. बट एक चीज़ मैं और आप सभी लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि ब्रेन जो हमें बच्चों को मिलता है, जैसे मेरे को ब्रेन मिला है, आपको मिला है, इवन ऑल बॉडी ऑर्गन्स, माई हेयर टेक्सचर, माई स्किन टेक्सचर, माई हाइट, माई नोज, माई ईयर, आई रिसीव्ड जेनेटिकली फ्रॉम माई पेरेंट्स. वो जो अपने पेरेंट्स से मिला है. तो सिमिलरली आप भी इसको एग्री करेंगे कि जो आपकी हाइट है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, इवन इन अ फेस कट, एवरीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम ईदर द मदर और फादर. Yes, sir. Similarly, everyone has this thing from genetically. तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल माई पेरेंट, इफ एनी बच्चा इज नॉट डूइंग गुड, वो जेनेटिकली इसको मिला है, ठीक है. अब जेनेटिकली जब उसको कोई चीज़ वीक मिली है, जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे, जैसे डायबिटीज़, पेरेंट इनटू डायबिटीज़, और मे बी सम अदर डिजीज विच इज जेनेटिकली द चिल्ड्रन आर रिसीविंग, तो उससे बच्चे की गलती नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स आर इन डायबिटीज़ हम उसको क्योर नहीं कर सकते. देन वी यू नीड लॉट ऑफ वर्क ऑन इट. तो बच्चों को बस हमें पेरेंट्स को ध्यान देना है कि इफ़ मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ एज ए चाइल्ड, तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको क्योर करेंगे, बच्चे के साथ मिलकर क्योर करेंगे. बट ऐसा नहीं कि उसको हम प्रेशराइज करें कि एनी हाउ यू हैव टू बी लाइक द चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा है और वो जेनेटिकली उस पेरेंट्स से, दूसरे पेरेंट्स से उसको रिसीव हुई, अपने पेरेंट्स से रिसीव हुई है. अब जिनके बच्चों की हाइट कम है, वो पेरेंट्स ये नहीं कह सकते ना कि यू हैव टू बी अ टॉलर लाइक द अदर चाइल्ड. तो मैं अपने लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है. जैसे 2% चिल्ड्रन आर बेसिकली जीनियस. वो 2% कौन से होते हैं? दोज आर ब्लेस्ड बाय गॉड, और मैं बायोलॉजिकली दोज आर ब्लेस्ड. बट जो 98% बच्चे हैं, वो अगर उतना अच्छा इस मोमेंट पे नहीं कर रहे हैं, इट डजंट मीन वो अच्छा नहीं करेंगे, वो भी एक दिन अच्छा करेंगे. मे नॉट बी they are good in maths and science, they may be good in this kind of work which you are doing today, or maybe they can be like Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, or badminton players, or maybe in other fields. तो उन एरियाज को टारगेट करने के लिए, उन एरियाज में बच्चों को भेजने के लिए, फर्स्ट हम पेरेंट्स को ये समझना है कि क्या मेरे बच्चे को मिला है. जो मिला है उसको आइडेंटिफाई करना है, और जो नहीं मिला है उस पर हमें ज़्यादा बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है. जैसे हम बच्चे की, मैंने एग्जांपल दिया, हम हाइट को नहीं बढ़ा सकते तो नहीं बढ़ा सकते, बट क्या उस हाइट के साथ हम कर सकते हैं? अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो हम उस हाइट के साथ में बास्केटबॉल प्लेयर उसको नहीं बना सकते. एक्सेप्शन आर एवरीवेयर. इफ समबडी इज ऑफ शॉर्ट हाइट कैन बी ए वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, बट शॉर्ट हाइट का प्रॉब्लम क्रिकेट में नहीं है. दिस बच्चा कैन गो इन क्रिकेट, दिस बच्चा कैन गो इन स्विमिंग ऑल्सो. तो जो जिस इंडस्ट्री की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम सबको मिलकर बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और काम करना है. तो सफलता जो है, सक्सेस जो है, वो स्कूल लेवल पर जांचना, ग्रेजुएशन लेवल पर जांचना, इवन व्हेन यू गो फर्स्ट टाइम इन अ जॉब, और सपोज यू बिकम IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग इन लाइफ, वो भी में सफलता नहीं है. सफलता इज एसेस्ड, सक्सेस इज एसेस्ड वंस यू फिनिश 30-40 years, and in this bracket of the life, journey of the life, then you check it what we have achieved और क्या हमने खोया है. This is called success. Thank you sir for sharing your perspective with us today. सर, मैं आपने जो कहा उससे बहुत रिलेट करती हूँ. I am a live example. 10th में I
didn't score that well, but 11th में I worked hard and I scored 92%, जो down and up, and I consider this a success for 11th. But आगे जाके क्या होगा ये आगे पता चलेगा. तो सर it's a half done actually, you know. When you scored less marks in the class 10th, maybe आप depressed रहे होंगे, and then you worked hard, तो 11th में आपने अच्छा किया हो. There may be some children in the class, शायद आपको पता होगा because they are your friends, उन्होंने अच्छा किया हो, may not be उन्होंने 11th में अच्छा ना किया हो. This is up and down in life. But सक्सेस को उस सैंपल में देखने के लिए यू नीड 30-40 years of sampling. Yes sir, I'm sure our viewers can also connect. And इसी से एक related question, 2011 से अब हम 2024 में बैठे हैं. आपकी जर्नी में भी कुछ ups and downs होंगे, तो आप क्या डिस्कस कर सकते हैं? Ups and down gives a basically a very good momentum in a life. अगर ups and down नहीं होंगे तो वो जो straight line nobody likes. मेडिकल में आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन किसी को पसंद नहीं होती, तो अप्स एंड डाउन बेसिकली गिव द लाइफ. 2011 में जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ, इट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी. आई केम इन 2010. आई एम वेरी लकी कि मैं 2000 जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो डे 1 से यहाँ पर हूँ. तो आई एम थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ आगरा जिन्होंने ट्रस्ट किया GD गोइंका स्कूल पर. और हम लोग नए थे आगरा में, इवन आगरा के लोगों को पता नहीं था उतना कि GD गोइंका स्कूल के बारे में, बिकॉज इट्स ए इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ NCR. GD गोइंका 30 years बिफोर फर्स्ट स्कूल GD गोइंका वसंत कुंज से स्टार्ट हुआ. और जब मैं आगरा में आया तो जब मैं पेरेंट्स से मिलता था तो लोगों को ये थोड़ा सा डाउट रहता था कि ये कौन सा स्कूल है, ये कहाँ का स्कूल है. कुछ लोग जानते थे जिनकी कनेक्टिविटी दिल्ली में, जिनके रिलेटिव्स और जिनके नॉन दिल्ली में थे वो जानते थे, बट नॉट बहुत लोग ऐसे थे कि जिनको नहीं पता था. तो फर्स्ट ईयर इज़ द चैलेंज. हम लोग पेरेंट्स को बताते थे कि आप जाइए, समझिए GD गोइंका के बारे में. और जिन पेरेंट ने ट्रस्ट किया, फर्स्ट ईयर वी रिसीव्ड 315 एडमिशन्स. और वहाँ से आज हम लोग, मैं बात करूँ अगर, शायद 10-12 हज़ार बच्चों को हम लोग डील किए हैं, क्योंकि बच्चे इन इतने सालों में, तो वो जो रिलेशनशिप आगरा में डेवलप हुई वो बड़ी अमेजिंग है. डाउन्स, कोविड एक एग्जाम्पल है. हम सभी लोगों के लिए डाउन था वो. हम लोग स्कूल नहीं आ पा रहे थे, बच्चे नहीं आ पा रहे थे, सब लोग परेशान थे. तो अप्स एंड डाउन स्कूल्स में के अलावा लाइफ में भी आते रहते हैं. वो आपको बेहतर करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. अगर स्कूल से संबंधित मैं देखूं तो एवरी डे वी हैव अप्स एंड डाउन. बच्चे किसी न किसी अचीवमेंट को अचीव करते हैं तो वी विल फील वेरी हैप्पी. सपोज somebody is getting achievement in dance, cricket, football, basketball, inter-school event, national event, state event, तो we feel very happy. कभी वो they lose also, तो we feel very sad. तो ups and downs होते हैं. बट जब आप डाउन होते हो ना, that is the time basically you learn a lot. जब आपका खराब समय आता है, जब आपको लगता है कि चीज़ें things are not going the way you want, then you explore कि क्यों मेरी तरह से चीज़ें नहीं चल रही है. We have been participating in this and that event. Why my child is not getting first position, second position in inter-school event? Then you explore. And in the process of explore, you come to know a lot of new things. तो ऐसा challenges daily basis पर आते हैं और इन challenges से हम लोग सीखते हैं और सीख करके we try to implement in the system and it comes in the form of a good result, which makes me happy as a father of the school and makes happy back home all the parents कि yes मेरे बच्चों ने अचीव किया. I hope I was able to clear what you wanted to know. Of course sir, and regardless of the challenges you faced and we will face in the future, I would still like to congratulate you on your journey. Thank you so much. Thank you. हर पेरेंट लिए उनका बच्चा बहुत प्रेशियस होता है, उनको बहुत प्यारा होता है एंड दे ओनली विश द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ऊपर से ऊपर मुकाम पे पहुँचे. तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों की मदद करें? आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं जो मुझे कोई जवाब देना है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, अब ये जवाब हो सकता हो कि ये रिलेट भी ना करे, ये द वे आई विल कन्वे टू द द पेरेंट्स, दे मे नॉट अग्री विद मी, बट एज यू आस्क्ड
I will convey one message which is on the basis of my own observations, my own learning. I'm not saying this is the only way. You may be having a better way which can be working for your child or may work even for my child also. But as a conclusion of my observations, I would like to suggest something. One thing which is basically I learned in these years of my tenure as a teacher and a principal. हर फादर ये चाहता है, हर मदर ये चाहता है कि उनका बच्चा टॉप पर जाए. एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि एवरी चाइल्ड इज़ बेटर इफ़ यू कंपेयर विद द पेरेंट्स. हर बच्चा अपने पेरेंट्स से अच्छा ही करेगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं. अब नाउ अच्छा करेगा बट इन विच डायरेक्शन. आई वॉन्ट टू कोट वन एग्जाम्पल. लाइक अगर मैं इसको स्पिरिचुअली बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि जेनेटिकली जो चीज़ हमें मिली है उनको हम ये भी कह सकते हैं हमें भगवान से मिली है. जैसे हमें स्किन टेक्सचर मिला है, हाइट मिली है, इवन आईज का शेड मिला है. एवरीथिंग वी रिसीव्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो जो चीज़ हमें मिला है पेरेंट्स से, इसको हम स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं. सब चीज़ भगवान से मिली है. इंटरनली हमें ब्रेन भी उसी से मिला होगा, ऑर्गन भी उसी से मिले होंगे. तो कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी कि हम बहुत सारी चीज़ें एज ए फादर, एज ए मदर बच्चे को नहीं कह सकते कि यू हैव टू बी लाइक दिस. अगर कोई बच्चा बहुत टॉल है, आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट को टॉल नहीं कर सकते. कुछ लिमिटेशंस हैं. लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ ना करें. हमें कुछ करना तो होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग नर्सरी से एक प्लांट लेके आते हैं और नर्सरी से प्लांट लाने के बाद वो वहाँ पर अच्छा ग्रो कर रहा है, हम उसको लाकर अपने ड्राइंग रूम में रख देते हैं. एज ए इंडिविजुअल अगर हम उसमें टाइम पर पानी नहीं देते, टाइम पर उसको धूप में रख के नहीं ले जाते, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक? दिस प्लांट विल ग्रो द वे वी वांट? नहीं. बट ये भी एक ट्रू है कि अगर ये प्लांट मैंगो का है, सो पपाया विल नॉट कम. इफ द प्लांट बिलोंग टू बेसिकली द ऑरेंज, देन स्ट्रॉबेरी विल नॉट कम. सो जो जीन्स हैं, जो उसके जेनेटिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट उसको एक एनवायरनमेंट दे सकते हो. नीदर इट विल वर्क और इट विल ग्रो इफ यू बेसिकली गिव एक्सेस वाटर. सपोज आप एक्सेस वाटर देना शुरू कर देते हैं कि वाटर इज बेसिकली द सोर्स, इट विल ग्रो. नो, इट विल नॉट वर्क. खराब हो जाएगा. आप इसको एक्सेस आप शेड में भी नहीं रख सकते, एक्सेस सनलाइट में भी नहीं रख सकते. इट्स ऑल्सो बैलेंस. सो सिमिलरली एज ए पेरेंट, जो हमें मिला है, if suppose as a father I receive my child as a plant of papaya, so I have to see how to grow this papaya, a better papaya, not a better mango. तो मुझे एज ए फादर मदर क्या करना है कि आई हैव टू बेसिकली बिट विजिलेंट कि मैं उसको टाइम पर पानी, टाइम पर हवा, टाइम पर सनलाइट दूँ. दैट इज द ओनली जॉब पेरेंट कैन डू. रेस्ट इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ एनी पेरेंट्स, एनी स्कूल, एनी टीचर. Now it comes to the basically the second thing, the sanskar. When anything is going good with the child, so this credit is given to the parent कि parents के अच्छे संस्कार है. When anything is not going the way the society wants, child उस तरह से नहीं कर रहा है, तो कहते parents अच्छे संस्कार दिए नहीं दिए. तो parent कोई ऐसा नहीं है जो अच्छे संस्कार नहीं देता. Every parents want to give the good संस्कार. Again I connect to the same upbringing, जिसको upbringing बोलते हैं. Excess water हो सकता हो उस पेड़ की लेंथ बढ़ जाए, फ्रूट्स नहीं आए. एक्सेस सनलाइट हो सकता है उसकी लीफ स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट फ्रूट्स नहीं आए. तो ये हमें बात को समझना है एज ए पेरेंट कि हम ऐसा भी नहीं कि हम कुछ ना करें, बट बहुत कुछ करें, बट इतने डिप्रेस भी ना हो कि seeing the tree of a mango in other house and we are working the same way in our plant or on our plant कि हमारे प्लांट पर भी मैंगो आए, जबकि हमारे पास पपाया का प्लांट है और स्ट्रॉबेरी का प्लांट है. सो आई मे बी रॉन्ग, आई एम ओपनली सेइंग, बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ कि जो हमारे पास है उसको हम केयर करें, उसके साथ विजिलेंट रहें. रेस्ट, जीन्स, जेनेटिक्स एंड आउटपुट, इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ एनीवन. थैंक यू. आई होप आई वाज एबल टू answer your question. Of course, sir. I hope the parents watching this are able to resonate with your words. Sir, this was really eye-opening for me and I hope हमारी audience के लिए भी होगा.
एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ GD गोयनका मैंने नोटिस करा है कि इस स्कूल में डिसिप्लिन और संस्कार पे बहुत फोकस किया जाता है. Previously, a few years back, I was in a different school and when I came to this school, मुझे एडजस्ट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी. बट नाउ दैट आई एम यूज्ड टू इट, आई कैन रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन. तो ये हमने स्कूल में कैसे इंटीग्रेट करा? ये बड़ा ही, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द स्कूल नाउ एंड यू योरसेल्फ एक्सेप्टेड कि इनिशियली इट वाज अ डिफिकल्ट फॉर यू एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. लाइक सपोज वी आर इंडियंस, वी आर गोइंग टू अ कंट्री वेयर a lot of rules are there. सो लाइक इन आगरा में हमें आदत नहीं है कि हम लोग सीट बेल्ट बांधते हैं, हेलमेट लगाते हैं, बट सडनली विल गो इन अदर कंट्रीज और इवन इन दिल्ली, तो सडनली थोड़ा प्रॉब्लम्स तो होती है. वी आर नॉट यूज्ड टू विद ऑल दीज रूल्स, बट रूल्स आर मेड बेसिकली फॉर द सेफ्टी. अगर आप सीट बेल्ट आगरा में रह के नहीं लगा रहे हैं तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि आपका कभी लाइफ में एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, बट बाई चांस कभी होता है तो इट विल सेव यू. सो वेर एवर वी विल गो इन एनी एनवायरमेंट वेयर रूल्स आर देयर, ऑल रूल्स आर मेड सो दैट यू पीपल आर सेफ. हम लोग बाहर के कंट्रीज में जाते हैं, आप देखते हैं दुबई में जाने के बाद, US में जाने के बाद, न्यूजीलैंड में जाने के बाद, सडनली वी आर द चेंज पीपल. रीजन बिकॉज रूल्स आर देयर. अब रूल्स आर देयर इसलिए वहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं. व्हेन वी स्टार्टेड द GD गोयनका स्कूल, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रांड एंड वी हैव लॉट ऑफ insights, lot of learning, lot of knowledge from the top schools of the GD Goenka, and they convey us, they pass on us कि without discipline, without rules, you cannot achieve anything. Like for example, classroom strength is a rule in the GD Goenka कि क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते. If as a school you keep 33 or 34 or 40, even when I was in Agra, I came to know, I was even a surprise. Even I think you mentioned me your school name also. How many students you had in your class? 80. Oh my God, 80 students. So 80 students, and now here 14. 14 in your stream. Yes. Though rule is that GD Goenka is basically is a 30 students from pre-nursery to class 12. We don't keep 31 child in the class. This is the one rule. What is the advantage of this rule? You sitting outside, you may feel what is the benefit. As a child, you understand now. कि when you have a 30 students in a class, it is easy for a teacher who is teaching. And the rule, wherever the child is going, like you are going in a dance, if you are going in a cricket, you are going in a football, any activity you are going, we have the facility with the coach. This is another rule. In GD Goenka, we have a 23 teachers. Those are catering to all these activities. When you go in 30 students are coming out from the class and 23 teachers standing to welcome you. So these facilities are basically not making the children of national level and the district level and the state level. These coaches, the team GD Goenka, which is in a sufficient number, they are giving all these results. So I want to present this thing this way. Discipline comes basically when you have the less strength. भीड़ को आप discipline नहीं कर सकते. I say my own way. If you are dealing 100 intellectuals, they may not behave they are literate because when they are in a crowd. और कभी-कभी कुछ illiterate लोग होते हैं but they are not in the form of crowd, you can deal them easily. So it happens with the teacher also. When the children are coming in a class, they come for a learning and they want to learn even from alphabet to the research level. So this transition you need basically one-to-one interaction rather a crowd. So crowd को आप काउंसिल नहीं कर सकते, क्राउड को आप गाइड कर सकते हो. एंड गाइडेंस नेवर रिजल्ट ओरिएंटेड. लाइक इफ आई सिट at a place where I am dealing lakhs of people, it is basically the भाषण और the lecture which may not be the basically the both side कि मुझे वहाँ का रिजल्ट भी मिले. But in a class when the teacher is teaching, it's a basically one-to-one and we ensure the result should also come. That is why the rule is made कि we will not keep more than 30 students in a class, and the other rules are there which is again for the welfare of the students. So rules are very important. You accepted this when you came in the GD Goenka. Initially you had some hiccups. It happens like if you notice, I want to give an example. Did you notice the elephant? Elephant कितना बड़ा animal होता है, एंड उसका जो महावत होता है जो उसको गाइड करता है, ही जस्ट इफ वेट वाइज कंपेयर करो तो 70 kg वर्सेस
this such a big, but how this individual who's a 70 kg is maintaining and manage such a big animal. बिगिनिंग से, शुरुआत से जब वो पैदा होता है, एलिफेंट पैदा उस दिन से उसको ट्रेन किया जाता है. इफ़ यू ब्रिंग एलिफेंट फ्रॉम अ जंगल और उसको आज ट्रेन करने जाओगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कोई ट्रेन नहीं कर सकता. तो इट हैपन्स, द रूल्स आर बेसिकली द संस्कार, विच इन अदर वे यू कैन से द संस्कार. These sanskar, if it is given in the early age, then there may be chances you can give them. Otherwise, the later stage, if anybody want to give, it will be the same story. जैसे एलिफेंट को आप गाइड करना चाहते हो, एलिफेंट को रोकना चाहते हो, तो आई एग्री दिस कि जो आपने कहा कि इनिशियली आपको प्रॉब्लम हुआ, उसके पीछे लॉजिक ये है कि वी वांट टू गिव द सेफ एंड वन टू वन एनवायरनमेंट, वन टू वन इंटरेक्शन फॉर द keeping the priority the children or making the school the children centric. I hope now you will agree what you wanted to know. Of course, sir, I agree. And as a student myself, my experience with seeking out teachers is so much easier, and it makes studying so much more enjoyable, and I'm able to focus a lot. And I want to add even here also, like as a principal, I'm dealing basically handful of students. Like when you're dealing 1500 students in a school, it's easy for me. I can meet parents, I can meet children, but when you deal 3000, 4000, then you will not be able to give the time to everyone. Similarly with the teachers, when you have a handful of students, 30 students in a class, or as a teacher you are dealing 200 students in a day, including the bus or other activities, it's easy for the teachers to meet and the guide and to even know the name of the child. For me, it's very easy because I have basically a limited strength in the classes. That is why strength in a class is a key to maintain a discipline, even to basically have a vigilance on students. That is basically the key to give a discipline even at home and in the school also. Thank you, sir. Sir, as we are now nearing the end of our program, I would like to go back to our previous question, which was about your personal life. Yes, sir. So, would you like to discuss a few things about it, as the students and the viewers are all curious? See, personal life you talk about, no, I was a child like you, but not privileged to be a student like GD Goenka. So, it's basically the one hiccup which we had. And there are other challenges in a life which I had as a child. But I said in the beginning, when you have a challenges, when you have a downs, when you have a up, you don't think of what you want from a life. When you have always good, you will not think left and right, you keep on going. So, but when you have a down in a life, you always explore alternatives, you look here and there, who can help me, where I can go, what I can achieve. So similarly, if you have a struggle in a life, naturally you will do wonder. May not be the expected, but at least you will be better than, if suppose you are standing on the bottom level and you start working over here, something somewhere you will be in a plus always. So similarly, I had as an individual, as a child, but in a profession wise, if I want to, give you the idea, I'm basically a software engineer. I did my masters in IT and then MPhil. I wanted to be a teacher for forever. Teacher bane. Uske baad I worked 9 years in one of the, again a good school, and then 2011 से you mentioned मैं यहाँ पर हूँ. So it's a very small, कोई achievements बड़े नहीं है personal life में, but you are my achievement, my children are my achievement. If I achieve, even the teacher achieve, even the parents achieve, and our children don't achieve, we are basically it's our failure. So as a principal, I have no achievement in a life other than my students. I'm sure since I became a teacher in 2001 until today. I dealt so many children, and each and every child is a precious for me. Each and every child is a basically asset for me. और वो मेरे achievements हैं. तो यही मेरे achievements हैं. I don't think और इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हो. Thank you so much, sir, for sharing. And thank you, Saburi. I want to express, even I have no hesitation in saying in this. This gap room I started, I think 6 years before. First time आपने मुझे इसमें बुलाया, ठीक है? And I don't like coming to the camera because again same thing. If you are doing good, we feel happy, ठीक है? ये आप लोगों के लिए है, और
I was basically requested by my entire गैप टीम कि सर इस बार आपको आना है, सबूरी ऑल्सो, सो आई एम हियर। कहीं मैंने कुछ आप लोगों को आई वॉन्ट टू से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको मैं मैच नहीं कर पाया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू सो मच।